Now, let's move on to the next concept of accuracy and precision. Accuracy and precision. Now, these are the two confusing terms. और इन दोनों में क्लियर कट डिफरेंस को समझो. Now, note that accuracy, this term is related to the method of experimentation. This accuracy, it depends on to what degree of carefulness you are maintaining. It totally depends on method of experimentation. Accuracy can be increased by maintaining more carefulness, while accuracy would get affected if experimentation is done with careless attitude. While precision totally depends on the instrument used and their least count. Instrument least count. For example, मैं इसी समय समझाता हूं. We have got a metric scale. We have got vernier caliper. We have got vernier caliper and we have got a screw gauge. The least count of metric scale is 1 millimeter. This is the least count. While the least count of vernier caliper is 0.1 millimeter and the least count of screw gauge is 0.01 millimeter. I will say screw gauge is the most precise instrument. This have got most precise, or you will say here you will have maximum precision. While vernier caliper have got less precision. Vernier caliper have got less precision. The measurement through vernier caliper have got less precision, while metric scale have got least precision. लीस्ट काउंट जितना अधिक होगा प्रेसिशन उतना कम होगा, और लीस्ट काउंट जितना कम होगा इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी मोर प्रेसाइज, प्रेसिशन ज्यादा होगा. वंस अगेन एक्यूरेसी और प्रेसिशन में रिलेशनशिप नहीं है. एक्यूरेसी एक इंस्ट्रूमेंट पर एक मेथड पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल हमने कोई लेंथ मेजर करी, हमने या डायमीटर मेजर करी एंड the measured diameter is 2.768. This is measured diameter, and the actual diameter is, the true diameter I will say, true diameter is, let us say, 3.168. This is in millimeter. This is measurement by, let us say, screw gauge. एट तक तो आएगा ही नहीं इनफैक्ट. एंड मेजर्ड डायमीटर बाय वर्नियर कैलिपर. हम इसी डायमीटर को वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं. मेजर्ड डायमीटर बाय वर्नियर कैलिपर इज लेट अस से 3.1
millimeter. This is by Vernier calipers. Now observe the three results. जरा ध्यान से देखिए, हमने ट्रू डायमीटर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ट्रू डायमीटर है 3.16 मिलीमीटर, ये एक्चुअल उसका डायमीटर है, और हमने उसी डायमीटर को मेजर करा है स्क्रू गेज से, इट्स 2.76, while when the same diameter is measured through vernier caliper it's measured as 3.1. now इस रिजल्ट को लेकर अब आप क्या कहोगे? I will say measurement by screw gauge is less accurate. आप देखिए, ट्रू डायमीटर से वर्नियर कैलिपर का जो डायमीटर मेजरमेंट हो रहा है, दिस डिफरेंस इज लेस, सो हियर द एक्यूरेसी इज मोर, while when we measured the diameter through screw gauge, कुछ गलती करी होगी, कुछ एरर करा होगा मेजरमेंट में, और मेजरमेंट्स में एरर करने की वजह से जो मेजर्ड डायमीटर रहा है स्क्रू गेज के द्वारा वो 2.76 मिलीमीटर आया. नाउ दिस डिफरेंस इज लार्ज. आई विल से measurement done by screw gauge is less accurate, while measurement done by vernier caliper is more accurate. While when we talk about precision, I will say the precision of measurement by screw gauge is more as compared to the precision of measurement by vernier caliper. देखिए, स्क्रू गेज ने जो डायमीटर मेजर करके दिया है वह डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर करके दिया है. उसने लीस्ट काउंट जो है 0.01 मिलीमीटर. विल से दिस डायमीटर हैव गॉट मोर प्रेसिजन while less accuracy. While here measurement done by vernier caliper it's less precision while more accurate. इधर एक्यूरेसी ज्यादा है, प्रेसिजन कम है, क्योंकि इधर डायमीटर कमेंट करते समय डेसिमल के बाद सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक ही प्रिसाइज आंसर दिया गया है, जबकि स्क्रू गेज के द्वारा डायमीटर मेजरमेंट में 0.01 मिलीमीटर तक प्रेसिजन दिया गया है. दिस इज मोर प्रिसाइज, दिस इज लेस प्रिसाइज, this is less accurate while this is more accurate. Observe the difference between accuracy and precision. Accuracy पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट किस मेथड से, किस तरीके से करा जा रहा है, उसमें कितनी गलतियां करी जा रही हैं, कितना उसको ध्यान से करा जा रहा है, इस बात पर एक्यूरेसी डिपेंड करती है. और प्रेसिजन पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हो और इंस्ट्रूमेंट में कितनी लीस्ट काउंट है, वह कितना प्रिसाइसली मेजर करते हैं, प्रेसिजन उस बात पर निर्भर करता है. एक बात इधर हम और बताना चाहेंगे. व्हेन एनी मेजरमेंट इज डन, द क्वांटिटीज, व्हेन एनी एक्सपेरिमेंटेशन इज डन, क्वांटिटीज मस्ट बी मेजर्ड एट इक्वल लेवल ऑफ एक्यूरेसी. जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो और उस एक्सपेरिमेंट से किसी वैल्यू का डिटर्मिनेशन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, हम जी के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, और जी के लिए हम यह एक्सप्रेशन लिख देते हैं, जी इज 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी. हम सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिटरमाइन करने के लिए हम लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम नोट करते हैं और यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. नाउ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी, वी नीड टू मेजर एल एंड वी नीड टू मेजर टी. We need to measure L and we need to measure T. Now, there is no point measuring one quantity to very high degree of accuracy and another quantity to less degree of accuracy. इससे कोई मतलब नहीं होता है. In fact, जो हम G की वैल्यू
कंक्लूड करेंगे, दैट कंक्लूजन वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। जो हम लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहे हैं उसी आधार पर हम जी की वैल्यू कंक्लूड करते हैं। कैसे करते हैं वह मैं अभी आगे फर्दर बताता हूं। अभी मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि जब हम जी का मेजरमेंट करने जाएंगे, जब हम जी का कैलकुलेशन करने जाएंगे और जी के कैलकुलेशन के लिए हम एल मेजर करेंगे, टी मेजर करेंगे, तो लेंथ मेजर करते समय भी और टाइम पीरियड मेजर करते समय भी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो रखना है वह बराबर रखना है, सो दैट जी की वैल्यू भी हमें मोस्ट एक्यूरेट मिल सके। वंस अगेन इधर हम एक बात और बता दें, एल का पावर 1 है, टी का पावर 2 है। एल का पावर जब 1 है तो एल के मेजरमेंट में जो एरर होगा उसका इफेक्ट, और टी का पावर 2 है तो टी के मेजरमेंट में जो एरर होगा उसका इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी वुड बी ट्वाइस द इफेक्ट ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल। इस बात को इधर ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान रखेंगे वह भी समझाता हूं, इसे नोट डाउन कीजिए। अगला आर्टिकल रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ whenever we do any measurement and whenever we plug in the values into any formulae and we calculate something, then what are the significant figures, how we should write our answer. Once again, accuracy and precision are related to the significant figures. For example, we measured some length and that length comes out to be 482.3 centimeter. Now when we write this length, we used to say the significant figures here are 4. All these figures are significant. All the figure before decimal and after decimal are significant. Significant figures, ये जो मैं 4 बोल रहा हूं, इसके लिए सबसे पहले कुछ रूल्स। Any non-zero digits are significant figures. कोई सा भी मेजरमेंट आप कर रहे हो उसमें जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है वह सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर significant. The second rule, any zero or all the zero between non-zero digits are significant. Any or all zero between non-zero digits are significant. मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मेजर डायमीटर एस 308.2 सेंटीमीटर। अब नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होती ही है, यह जो जीरो है जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, now this zero is taken as a significant digit. Here the significant digits are 4 once again. The third rule,
all the zero after non-zero digits or trailing to non-zero digits are non-significant. 0 before or after non-zero digits are not significant. उन्हें हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ लेंथ इज मेजर्ड एज 342.00 meters. If this is the length, now how many significant digits? Yeah, is that one or not? How many significant digits do this value have? हम कहेंगे 1, 3, 4 सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, और यह जो 0 जो 4 और 2 के बीच में है इसे भी हम सिग्निफिकेंट कहेंगे. मगर 2 के बाद में यह जो आखिरी में 2 0 0 लिखे हुए हैं यह सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे. हियर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 5. 1 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, 0 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है. यह दोनों 0 0 सिग्निफिकेंट नहीं है. इसी तरीके से यदि कहीं पर टाइम मेजर होता है, फॉर एग्जाम्पल 0.0012 seconds, if this is the time measured, now in this measurement how many significant digits do we have? हम कहेंगे 1 और 2 यह दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. यह दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. यह 1 भी सिग्निफिकेंट है, यह 2 भी सिग्निफिकेंट है. मगर इस 1 और 2 के पहले यह जो 2 0 लगे हुए हैं, भले डेसिमल के बाद में है, यह डेसिमल के बाद में 1 के पहले, बट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. यह 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, यह 0 सिग्निफिकेंट नहीं है. हियर वी हैव गॉट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखें. यदि कोई 0 इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स के आखिरी में लगा हुआ है, 0 इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स के पहले लगा हुआ है, तो यह 0 सिग्निफिकेंट नहीं है. जबकि 0 यदि बीच में होता है तो वह सिग्निफिकेंट है. सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं. अब एक और बात, 0 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद में यदि कोई डिजिट्स हैं उनके बाद में 0 लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होता है. 0 after decimal and non-zero digits are significant. उन्हें हम significant कहते हैं. जरा इस बात को समझें. If one measures diameter as 0.260 centimeter. If diameter is measured at 0.260 centimeter. अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? हम कहेंगे इस केस में यह 2 भी सिग्निफिकेंट है, 6 भी सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल के बाद में 2 और 6 के बाद आने वाला यह 0 भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा. This is also a significant digit. Here we have got 3 significant digits. इस बात को बड़े ध्यान से समझें. These are the rules to count the significant digits. किसी भी टर्म में, किसी भी वैल्यू में, किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जितनी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वह तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट होती हैं, और नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में यदि कोई 0 आ रहा है तो वह भी सिग्निफिकेंट डिजिट ही कहलाएगा. नॉन जीरो डिजिट के बाद में यदि जीरोस दिख रहे हैं या नॉन जीरो डिजिट्स के पहले यदि कुछ जीरोस दिख रहे हैं तो वह सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं. ध्यान रहे, यदि इस जगह पर मैं 0 लिख दूंगा तो यह 0 सिग्निफिकेंट कहलाने लगेगा. अब इस केस में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई.
डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं उसमें यदि 0 है तो वह सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है। नाउ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे इधर हमने कहा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसी को यदि मैं मिलीमीटर में लिखता हूं 4823 मिलीमीटर, अभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 ही रहेंगे। यदि मैं इसको मीटर्स में लिखता हूं 48.23 मीटर्स, मैंने यूनिट चेंज कर दिया, अभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 ही रहेंगे। यदि मैं इसको किलोमीटर्स में लिखता हूं, इफ आई राइट इट इन किलोमीटर्स लाइक दिस 0.048 किलोमीटर, अभी भी डेसिमल के बाद आने वाला यह 0, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स यही रहेंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर येट 4। यदि मैं इसको माइक्रोमीटर में लिखता हूं, देखिए माइक्रोमीटर में कैसे लिखेंगे, यह जो मिलीमीटर है 4823 और इसके बाद में 3 0 लगा दो, दिस माइक्रोमीटर्स। यदि मैंने इसको माइक्रोमीटर में लिखा तब सेम लेंथ है, वैल्यू सेम है, यूनिट चेंज करता जा रहा हूं, इधर सेंटीमीटर में लिखा, इधर मिलीमीटर में लिखा, इधर मीटर्स में लिखा, इधर किलोमीटर्स में, इधर माइक्रोमीटर्स में। अब माइक्रोमीटर में लिखने पर डिजिट्स ढेर सारी दिखने लगी, मगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसे कहेंगे? हम कहेंगे आखिरी की ये जो 3 0 लिखे हुए हैं ये अभी भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं रखते हैं। सिग्निफिकेंस इन 4 डिजिट का ही है। द सिग्निफिकेंट डिजिट आर येट इक्वल टू 4। हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कई बार IIT JEE में, मेंस में आपसे कोई वैल्यू दी जाएगी और पूछा जाएगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, तो उन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखने के लिए आप यह सारे कंसेप्ट लगाओगे। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन्हें काउंट करोगे, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो 0 है उसे काउंट करोगे, आखिरी में दिखने वाले 0, नॉन जीरो डिजिट्स के आखिरी में या पहले दिखने वाले 0, इन्हें काउंट नहीं करोगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के बाद जो 0 दिख रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बाद में जो 0 दिख रहा है उनको भी सिग्निफिकेंट ही काउंट करा जाएगा। और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स इन विच वी आर राइटिंग आवर आंसर। अब इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करने पर कैसे आंसर लिखा जाएगा, इस बात को समझते हैं। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड जो ऑपरेशन है उनको देखना चाहिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने किसी इस रूम का हमें वॉल्यूम मेजर करना है एंड लेंथ इज मेजर्ड टू बी 3.46 मीटर, breadth is measured to be 1.82 meters and height is measured to be let us say 1.55 meters. यह इस रूम के पैरामीटर्स मेजर हुए। 3.46 मीटर is the length, breadth is 1.82 meters and height is 1.55 meter. Now, how many significant digit do length have? 3. How many significant digit do breadth have? 3. And how many significant digit do height have? 3. Now, if I say what is volume of the room? Volume of the room is length, breadth into height. अब हम इसे लिखेंगे 3.46 into 1.82 into 1.55। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसको कैलकुलेटर से इसी समय करता हूं और
बताता हूं कि एक्यूरेटली कैलकुलेटर से करने पर यह कितना आता है। 3.46 इंटू 1.82 इंटू 1.55। जब मैंने कैलकुलेटर से करा है तो यह दिख रहा है 9.76066 मीटर क्यूब। अब क्या मुझे आंसर यह लिखना चाहिए? क्या आंसर यह लिखा जाएगा? मैं कहता हूं कभी नहीं। यदि दिए गए डेटा में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है, लेंथ में भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है, ब्रेड्थ में भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है, हाइट में भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है, तो इधर भी मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो दिखना चाहिए वह 3 ही दिखना चाहिए। आई वुड राइट द आंसर एज 9.76 मीटर क्यूब। Now, just imagine another situation. यदि breadth 1.8 मीटर दिया होता, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इधर 3 के बजाय 2 हो जाते। जस्ट इमेजिन। या ठीक है, ब्रेड्थ जो है उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिए हुए। अब इस केस में व्हाट वुड बी आवर आंसर? हम कहेंगे वंस अगेन वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ की जगह 3.46, ब्रेड्थ की जगह 1.8 और हाइट की जगह 1.55 मीटर क्यूब। अब मैं बिल्कुल एक्यूरेटली मेजरमेंट पहले करता हूं। 3.46 इंटू 1.8 इंटू 1.55, it's calculated to be 9.6534 मीटर क्यूब। तो क्या यह आंसर लिखना होगा? नहीं, कभी नहीं। जो आंसर लिखा जाएगा, हम कहते हैं दिए गए डेटा में लीस्ट सिग्निफिकेंट, जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जितने हैं, इट्स 2। The least number of significant digits is given in breadth and it's 2. हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखी जा सकती है। 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं लिखी जाएंगी। हम इसे कहेंगे 9.6 मीटर क्यूब। हम 9.65 भी नहीं लिख पाएंगे। इस बात को समझिए। The least number of significant digits is considered while giving the final answer. यदि 3 significant digits तीनों में है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो फाइनल आंसर में भी 3 significant digits ही दिखनी चाहिए। यदि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसी एक में, ब्रेड्थ में 2 है, तो फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखनी चाहिए। सेम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में करा, बिल्कुल इसी तरीके से डिवीजन में भी मैं इसी समय बताता हूं। नाउ इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में द कंसेप्ट ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डज नॉट अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर मास m1 दे रखा है 326.6 ग्राम्स, मास m2 दे रखा है 22.12 ग्राम्स और मास m3 दे रखा है 2.263 ग्राम्स। सपोज मास m1, m2, m3 दे रखा है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज टोटल मास m, विच इज मास m1 प्लस मास m2 प्लस मास m3। अब देखिए, इधर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स की यदि बात करें तो मास m1 में भी 4 है, मास m2 में भी 4 है, मास m3 में भी 4 है। मगर जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं तब
एक्यूरेट वैल्यू यदि हम ऐड करके बता दें 326.6 प्लस 22.12 प्लस 2.263, यह वैल्यू होती है 350.983 ग्राम्स। अब बात यह है कि क्या रूल लगाया जाएगा, क्या चीज सोची जाएगी, क्या हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। चलिए मैं इस बात को थोड़ा और ईज आउट करने के लिए इधर तो सिर्फ 326.6, अब इधर हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स कितने हैं। इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इधर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इधर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। हमारे फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट दिखना चाहिए। हम कहेंगे इस जगह पर 350.9 ग्राम्स। This would be my answer. डेसिमल के बाद एक ही डिजिट। वंस अगेन इधर सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला रूल भी होल्ड करता हुआ दिख रहा है। मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाले रूल को हटाते हुए इस कंसेप्ट को समझा देता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको 2.1 ग्राम्स लिख देता हूं, तो यह कंसेप्ट ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। मास m1 इज दिस, मास m2 इज दिस, मास m3 इज दिस। अब हम कहेंगे डेसिमल के बाद इधर भी सिंगल डिजिट है, इधर भी सिंगल डिजिट है। पहले एक्यूरेट आंसर लिखता हूं मैं। एक्यूरेट आंसर क्या है जरा देखें, 326.6 प्लस 2.1 प्लस 2.263। द एक्यूरेट आंसर इज 330.963। 330.963 grams, but it should be written as डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो 330.9 ग्राम्स यह लिखा जाना चाहिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला रूल होल्ड नहीं करता है। इस केस में डेसिमल के बाद जितने मिनिमम डिजिट्स है उसे काउंट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मास m1 दे रखा है 9.16 ग्राम और मास m2 दे रखा है 9.12 grams, and let us say mass m is m1 minus m2। अब जब मास m1 माइनस m2 करेंगे तो 9.16 माइनस 9.12, नाउ we will write 0.04 grams। अब इधर आप एक बात देखें, हियर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3, हियर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3, जबकि कैलकुलेशन करने के बाद जब मास m निकाला तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ एक ही बचा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कई बार सिग्निफिकेंट डिजिट्स लूज हो जाते हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कंसेप्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता है। यहां पर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वह अप्लाई होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का राउंडिंग ऑफ कैसे करा जाए, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। राउंडिंग ऑफ, देखिए सपोज कोई वैल्यू है 9.856 और हमें इसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। 3 सिग्निफिकेंट, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और हमें फाइनली आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है। तो 9.85
ये 3 डिजिट्स होने चाहिए। अब इसके बाद ये जो चौथा डिजिट दिख रहा है, इसको देखकर हम तीसरे डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। हम इसे लिख देंगे 9.86। यदि नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रखने हैं, 6 इज नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट एक्सीड 5, तो इसे हम 1 से बढ़ा देंगे। बड़ा साधारण सा कंसेप्ट है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है, आपको आता है, पता है। और यदि यहीं पर यह लिखा होता 9.853, इस केस में राउंडिंग ऑफ कैसे करते? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखने, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखने, और यह जो डिजिट है, चौथा जो डिजिट दिख रहा है, यह 5 से कम है। इस केस में जब यह 5 से कम है तो इसे सीधा सीधा ड्रॉप कर दिया जाएगा, इसको 9.85 लिखा जाएगा। अब यदि 5 से ज्यादा है तो साधारण सा कंसेप्ट है, इस डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। यदि 5 से कम है तो साधारण सा कंसेप्ट है, इसको 1 से कम कर देंगे। मगर यदि वो एग्जैक्टली 5 हो तब क्या करेंगे? जरा देखिए, 2 सिचुएशन में लिखता हूं। कोई वैल्यू है 382.5 और 3 और 285.5, या ऐसे 38.25 और 28.55, इस तरीके से 2 हैं और मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखने हैं। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब मुझे यह 3 डिजिट्स लिखने हैं और चौथे डिजिट को देखकर तीसरे डिजिट का राउंड ऑफ करना है। 4th डिजिट यदि 5 से बड़ा होता तो आसान होता, मैं इधर 2 की जगह 3 कर देता। यदि चौथा डिजिट 5 से कम होता तो आसान होता, मैं उसको सीधा ड्रॉप कर देता, कुछ फर्क नहीं करता। मगर जब ये एग्जैक्टली 5 है तब क्या हो? तब 2 सिचुएशन देखी जाती है। यदि ये एग्जैक्टली 5 है और 3rd डिजिट, इसके पहले वाला डिजिट यदि वो इवन है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करा जाएगा। इफ इट इज इवन, 2 इज इवन नंबर, तो इस 5 को ऐसा कैसे ड्रॉप करा जा सकता है। मगर अब इधर देखिए 28.5 और इसके बाद यह 5 है। इस 5 के पहले वाला यह डिजिट यदि ऑड है तो इस 5 को ड्रॉप करते हुए इस ऑड को इवन बना दिया जाएगा, इसको 28.6 कर दिया जाएगा। जरा ध्यान से देखें, इस 5 को हमें ड्रॉप करने के लिए इस ऑड को 1 यूनिट से बढ़ाकर हमने इवन बना दिया। इस तरीके से यदि नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 होता है तो इस तरह से राउंडिंग ऑफ करा जाता है। बड़े ध्यान से देखिए, इस कंसेप्ट को समझिए। नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स का राउंडिंग ऑफ, यदि कहीं पर आपका आंसर 4 डिजिट में आ रहा है और वहां पर हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है और आखिरी की 1 डिजिट को हटाना है, तो उसका राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है। राउंडिंग ऑफ यदि वह वैल्यू 5 से ज्यादा है तो इधर एक वैल्यू बढ़ाकर की जाएगी, 5 से कम है तो फिर इधर हम कोई फर्क नहीं करेंगे। यदि वो एग्जैक्टली 5 है तो इवन है तो कोई फर्क नहीं करा जाएगा, ऑड है तो एक बढ़ाकर उसको इवन बना दिया जाएगा। नोट डाउन दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से दिमाग में बैठाइए। अब एरर्स, एनालिसिस ऑफ एरर्स में एक लास्ट आर्टिकल बाकी है, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इस अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। गुड बाय, गुड डे।